ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جن کے بچوں کے بارے میں، جن کے بھائیوں کے بارے میں، جن کے اپنوں کے بارے میں ہم شہادت کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان شہیدوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. وہ کوئی بھی شخص جو ملک کے لیے ایسا جذبہ رکھتا ہو کہ اس کے تمام رشتے، اس کے تمام لوگ، اس کی تمام سوچ، تمام خواہش، تمام تر مطلب ہر چیز ہی اس کی زندگی میں بس اس کا مرکز یہ ہو کہ میرا وطن اور میرے لوگ اور وطن کی حفاظت. تو اس جذبے کو سلام ہم پیش کرتے ہیں، اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس جذبے کو پروان چڑھانے والے وہ ماں باپ اور وہ خاندان جو آج انہیں یاد کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا اپنا ہے. شہادت بالکل ایک بہت اعلیٰ رتبہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے کے جانے کا ایک غم یا اس سے دوری کا جو غم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ شہداء کی فیملیز اس وقت موجود ہیں. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے پروگرام میں آج تشریف فرمائے شہید مہتاب علی پلیجو، جو کہ 36 بلوچ سے ان کا تعلق تھا. 5 سپٹمبر سن 2000 میں LOC کشمیر بارڈر پر وہ تعینات تھے اور سن 2000 میں ان کو شہادت ہوئی. والد صاحب ان کے یہاں پر موجود ہیں، محمد الیاس صاحب، اور مدر بھی ان کی موجود ہیں، رقیہ بی بی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید عبدالغفار کی فیملی، جو کہ سوات آپریشن 5FF کا حصہ تھے، اور مئی 2009 میں ان کو شہادت ہوئی. ان کے بھائی یہاں پر موجود ہیں عبدالغنی، اور والدہ موجود ہیں سکینہ بی بی صاحبہ. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکریہ کے ساتھ بہت آپ لوگوں کی یہ میرے خیال میں ٹی وی چینل پہ آنا اور بات کرنا اور سب بتانا، وقت نکالنا، اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. بڑی محبت. بیٹے کے حوالے سے کیا چیز یاد آتی ہے، کیا چیز بتانا چاہیں گے؟ اگر ہم شہید کو آپ کی نظر سے آج دیکھنا چاہیں تو کیا بتائیں گے ہمیں ان کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بیٹے کو پاکستان آرمی جوائن کرنے کا بہت شوق تھا. میرے بیٹے نے کمیشن میں اپیئر ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ حالات ٹپیکل تھے، وہ کمیشن کلیئر نہیں کر سکا. پھر ایز اے سولجر اس نے جوائن کی پاکستان آرمی. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے. مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے کی جو قربانی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اور بہت اعلیٰ قربانی ہے. میرا بیٹا اس نے لائٹ کمانڈو کورس بھی کیا تھا. اچھا. وہ لائٹ کمانڈو بھی تھا، اور اپنے یونٹ کا وہ ایک سمجھو مایہ ناز سپاہی تھا. بالکل. اس کے جتنے بھی سینئرس ہیں وہ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں، میرے سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں، مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے اتنا بڑا نام پیدا کیا کہ مجھے ناچیز کو لوگ یاد کرتے ہیں اچھے الفاظوں میں، اور یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑا فخر ہے. بالکل بالکل صحیح بات. رقیہ بی بی صاحبہ، آپ 2 بیٹے تھے آپ کے، جس میں یہ بڑے بیٹے تھے جی جی شہید. جی. جب شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سفر کو یاد کرتے ہیں جب اس نے آپ سے کہا ہوگا کہ میں آرمی میں جانا ہے. مجھے مائیں چاہتی ہیں بچے فوج میں جائیں، لیکن ڈرتی بھی ہیں. تو آپ کو کوئی پریشانی ہوئی تھی؟ ان دنوں میں یہ موبائل نہیں تھی، خط کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی. وہ ٹریننگ کر کے آیا، بہت کمزور، اتنا کھانا پکایا. میں نے بولا اماں پاگل ہو تم، اتنا کھانا پکا رہی ہو؟ ہم جو ہے نا اتنا کھانا کھائیں گے تو لوگوں کو کون دیکھے گا. ماں تھی نا، ہر چیز پکا کے رکھی. بولا اماں اتنا نہیں، مزاق کر. میں کہا اب نہیں چھوڑوں گی تیرے کو، میں چھپا لوں گی. تو بولا اماں بچھو کاٹتا ہے پھر بھی انسان مر جاتا ہے، بخار میں چلا جاتا ہے، بیماری میں چلا جاتا ہے. اماں تیرا بیٹا مہتاب جو ہے نا وہ بہت رنگ لائے گا، دنیا تیرے کو سلامی دے گی. تو واقعی اس نے کر کے دکھایا. جو نصیب میں ہوا. ہم خوش ہیں. ماں باپ کے تو زخم نہیں ہوتا ہے، مگر ہماری فوجی عزت کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں. انسان واقعی سوچتی ہوں تو انسان ویسے بھی مر جاتا ہے.
मेरा बेटा बहुत बहादुर था। आया, दूसरे चक्कर में आया, 3 महीने के बाद छुट्टी मिलती थी उनको। आया तो उसको टांग में गोलियां लगी थी। अच्छा। हाँ, बताया नहीं, तब मेरे को गोली लगी है। नाके निकला तो ये गोलियां बांध के निकला। मेरा मेहताब रुक रुक रुक, ये क्या है बेटा? बोला वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। गोलियां लगी थी उसको टांगों में। बस जो नसीब में था, वो तो इंसान की मुकद्दर की बात ही है ना, हम तो टाल नहीं सकते। बिल्कुल। और शहादत के वाक़े के हवाले से भी आपसे पूछेंगे, जो उस शहादत का वाक़या आपको जिस तरह पता चला होगा, लेकिन उससे पहले शहीद अब्दुल गफ़ार की फ़ैमिली भी यहाँ पर मौजूद हैं। सकीना बीबी, उनकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। सकीना बीबी, आपसे जब शहीद ने कहा था, पहले जब उन्होंने फ़ौज में जाना था, तो आपसे आके कुछ कहा था? आपसे कोई बातचीत हुई थी? तो छोटा था, पढ़ने गया था, हाँ। तो बोला अम्मा दुआ करो, हम फौज में जाएगा। फिर मैंने दुआ किया, मैं बोला अल्लाह आपको कामयाब कर। बोला रोज़ जाता है मेरे को, बोला हम हाथ हमारा ऐसा करो हम कामयाब होगा। फिर पढ़ने पूरा हुआ था, फिर टीलिंगे में गया था, उसका नाम लिखा हुआ। फिर पढ़ने गया था, इसके पास एक आना भी नहीं था। कभी मैंने आटा न दिया, कभी 1 रुपया दिया। अच्छा। इसका अब्बू बीमार था बहुत, काम पे नहीं था। मैंने बंगला में काम किया था, इसको पढ़ाया। अच्छा। बोला माँ वो ब्रेक का टाइम होता है, हमारा 1 रुपया तुम दिया, तुम पेंसिल ले लिया, मैंने कापी ले लिया। ब्रेक का टाइम हुआ तो मैं पीछे स्कूल के पीछे छुप गया। मेरे को वो बात आ गया तो फिर रोने लगा। सब बच्चे ने खाना 1 रुपए, और इतने में भी जो ब्रेक का टाइम था उसमें अपने लिए पेंसिल और कॉपी ले लेता था। फिर घर पे आया, रोटी खाया, बोले अम्मा मेरे को बहुत भूख लगा। एक दिन भी इसका स्कूल नहीं छोड़ा, बगैर पैसा भी लेके गया। अभी बच्चे पैसा लेते हैं फिर नहीं जाता। उसने बहुत शौक था, अम्मा दुआ करो दुआ करो। फिर मैंने बोला था हमारा बहन का बेटी है, अभी तुम जवान है, उसके लिए हम तुम्हारा मंगनी करेगा। बोला अम्मा पता नहीं कैसा होगा। उसको बोला दुआ करो मन लिए, हम फौज में जाएगा, फिर वो शादी करेगा। वो बेटे को मैंने बोल दिया, बहन को बेटी को मैं बोला आपको शौक है, हमारे बेटे के लिए शौक है, ले गए। बोले हाँ मेरे को पसंद है अब्दुल गफ्फार। फिर मैंने मंगनी किया 1 साल 1.5 साल, इसका बाद मैंने शादी दिया। शादी भी हो गई थी? शादी हो गया, 3 साल था फौज में, फिर आ गया था 15 दिन के लिए। मैंने उसको शादी दिया, शादी मैंने दिया, फिर उसका बच्चा नहीं हुआ। 4 साल उसका शादी में हुआ, 4 साल पूरा हुआ था। वो महीना में शादी हुआ था, वही महीना में उसका शहादत होता था। आखिरी बार शहादत होता है। फिर बोला अम्मा दुआ करो हमारा लिए, हमारा दोस्त का गोली लगा, वो सेवड़ वाला है, सेवड़ शरीफ वाला, वो हमारा दोस्त है। मैं बोला आपको अल्लाह मदद है। बोला हमारा लिए दुआ नहीं करो, सबका लिए, हमारे दोस्त का लिए भी दुआ करो। मैं बोला सबको अल्लाह मदद है, आप ऐसा करो चुप चुप कर निकलो। बोला हमारा अम्मा बहुत बीमार है, वो मर जाता है। बोला नहीं अम्मा ऐसा नहीं बोलो। फिर रोने लगा, फ़ोन बंद किया। वो छोटा फ़ोन था पहला, फ़ोन बंद किया। फिर 1 हफ्ते बाद इसको शहीद का वो मिला मेरे को। अम्मा दुआ करो, मैं अलीप कैप्टन से आता हूँ। फिर इसका शहीद का बाद अलीप कैप्टन से आता है। अब्दुल गनी आपसे छोटे थे भाई, बड़े जी थे? बिल्कुल। याद अभी भी आते हैं, दिल के आंसू होता है। वो छोटा था मेरे से, वो स्कूल जाते थे, स्कूलों में प्रोग्राम थे जो वो कह रहे थे कि मैं फौज का हिस्सा बनाऊंगा इंशाल्लाह एक दिन और करके दिखाऊंगा, मैं अपने मुल्क के लिए करके दिखाऊंगा। जब छोटा था प्रोग्राम थे स्कूलों का, जिस दिन वो बड़ा हो गया
تو اس نے فوج کا 3 بندے تھے, تینوں دوست تھے, ہمارے کزن بھی تھے سارے, تینوں کزن تھے, وہ سب گئے ہیں ادھر, سلیکٹ ہو گئے ہمارا بھائی کے لیے. وہ فیل ہو گئے میڈیکل سے, کوئی پتہ نہیں قد کی وجہ سے یہ سلیکٹ ہو گیا, یہ گیا. یہ جو آتے جاتے تھے واپس یہ طالبانوں کا جو سوات آپریشن پہ جو طالبانوں کا ساتھ تھا اس کا, تو آپریشن کے دوران پہ تو فون کرتے تھے, کبھی لگتا تھا کبھی نہیں. اسی دوران پہ فوجیوں کو فون الاؤ ہوا تھا, چھوٹا موٹا فون موبائل شروع میں, تو اس سے بات کرتا تھا. وہ کہہ رہا تھا بس ہمارے لیے دعا کریں, دن کو ہم لوگ بازار میں گھوم رہے ہیں تو ٹارگٹ کر رہے ہیں, رات کو ہم لوگوں کو چوکیوں کو اڑا رہے ہیں, مار رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اور یار دوستوں کو بھی میرا سلام دینا, اس کا فون نہیں لگ رہے ہیں, ہمارے فون پتہ نہیں کہاں کام کر رہے, کبھی نہیں کر رہے, جنگلوں میں دیہاتوں میں. اور بٹکیلا میں تھا میرا گھر میں, وادہ کیلا میں یا بٹکیلا میں وہاں تھا وہاں پر. تو اس دن میں ادھر شہر میں تھا, میرا بڑا بہن وہ کہہ رہا تھا میں گھر پہ آؤں گا امو کے دیکھنے. میں نے بولا صحیح ہے. چھوٹا گاڑی میرا پاس تھا, میں ہمارا تقریباً یہ گلی مار میں نے کراس کیا, میرے کو فون آیا, بولتے عبدالغفار کا بھائی ہے. میں نے بولا ہاں. بولتے اس نے شہادت نوش کی ہے. تو میرے زمین ہمارے پاؤں سے نکل گیا, میں خاموش ہو گیا. ٹیپ چل رہا تھا گاڑی کا, ٹیپ بند کیا. میں نے بولا بہن کے بچے تھے ساتھ میں, اس نے کہا کہ ماموں ٹیپ بند کیا. میں نے بولا ہاں تھوڑا فون کا آواز صاف نہیں آ رہا ہے. تو گاڑی سائڈ پہ میں نے کیا, یار دوستوں کو نمبر بھی دیا. میں نے بولا اس بندے سے رابطہ کریں, میرے سے بات نہیں ہو رہا ہے. تو گھر آ گیا, تو گھر پہ امی والوں سارے سب کو میں نے بتا دیا. ہر کوئی اپنے میں تھا. اس دن تو دوزخ تھا ہمارے گھر میں, پتہ نہیں دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا کریں ابھی, کس کو کیا بولیں. تو اس دن ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں نیم کا درخت تھا, اس کے بھی پل نیچے تھے اس کے پتے, ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے اس کو. ہمارا والد صاحب تھا, شوگر کا مریض تھا, اور وہ الگ گر گئے. میں پتہ نہیں اس کو کنٹرول کروں, گھر والوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو. تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. تو بھائی یہ یار دوست تھے, ہمارا کزن تھے, اس نے ہمارے کو عزت ہمت دیا کہ آپ بڑے ہیں, تھوڑا ہمت سے کام لو اور دعا کرنا اس کے لیے. میں نے بولا ہم تو دعا کرے نہیں کرے, وہ انشاءاللہ وہ آخرت میں, وہ تو زندہ ہے, شہید زندہ ہیں, شہید مردہ ہے, اس کو کہہ بھی نہیں سکتے بندہ. اور ان کی وجہ سے انشاءاللہ جو فیملی ہیں, کزن ہیں, جو ہمارا دین بتاتے ہیں کہ اس کو بھی آخرت میں جنت لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارا کو فکر ہے, اس کے یادیں تو آتے رہتے ہیں ہر روز ہر پل. جو ہمارا مین گیٹ ہے اس میں بھی شہید عبدالغفار پاک آرمی لکھا ہوا ہے. اور ہمارے کو تو فکر ہے, لیکن ہم جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں کبھی بھی ہمارا ضرورت ہو, کبھی بھی اس عمر میں بھی اگر جائز نہیں ہے تو اگر وہ جائز سمجھے کوئی بھی ٹائم پہ, رات کو دن کو, کبھی بھی ہمارا ضرورت ہو. ہم 4 بھائی ابھی تک بھی ہیں انشاءاللہ, ہم ان کے لیے نذرانہ پیش کیا اور کریں گے انشاءاللہ, اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے. اور یہ آمین کوئی آمین. آسان بات نہیں ہے, جس پر گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور فیملیز بھی ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ہمارے ساتھ شہید مہتاب علی پلیجو کے گھر والے, ان کے والدین یہاں پر موجود ہیں. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ریاض جوکھیو نے, جو کہ بھائی ہیں آصف علی جوکھیو کے, جو وزیرستان میں 2009 میں شہید ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آصف علی کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ شہادت کا جو دن تھا اور جو واقعہ تھا اور جس طرح سے آپ کو پتہ چلا, وہ کیا تھا؟ میرا بیٹا کارگل کی ماس پہ جب کچھ ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی تھی تو اس وقت کارگل کی جنگ چھڑ گئی تھی, تو والنٹری وہاں پر ہو گیا تھا. وہاں سے وہ غازی ہو کر آیا تھا, زخمی, جو ٹانگوں میں گولیاں والدہ نے بتایا تھا, وہاں سے وہ زخمی ہو کے آیا تھا. اس کے بعد پھر LOC پہ
लाइन ऑफ कंट्रोल हाजी पीर सेक्टर जनरल जो कि कश्मीर बॉर्डर पे मेरे बच्चे को मतलब ड्यूटी पे तैनात किया गया। 5 सितंबर को मार्टर का गोला लगने से उसकी शहादत हुई। अब वो जब वहाँ गए तो तकरीबन 4 महीने तक हमारा उससे रब्ता ही नहीं था, सही। क्योंकि वहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं होते हैं, कोई मतलब सिस्टम नहीं होता है कम्युनिकेशन का। तो मैं सुबह ड्यूटी पर आया, मेरी ड्यूटी यहाँ सन सेक्रेटरी में थी। सुबह के टाइम पे 9:30 बजे फ़ोन आया कोर कमांडर ऑफिस से कि मुझे मेरे दफ्तर में, उस टाइम में मोबाइल सिस्टम बहुत कम था, सन 2000 की बात है, तो मेरे दफ्तर में मुझे फ़ोन आया कि भाई आपका फ़ोन है, आप बात कर लें। मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कोर कमांडर मुज़फ़्फ़र उस्मानी साहब बोल रहा हूँ। बोला आपके मेहताब अली क्या लगते हैं आपके? मैंने कहा मेरे बेटे हैं। बोला और कितने बेटे हैं आपके? मैंने कहा मेरे टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें एक तो छोटा है 11 साल का है, और मेहताब अली जो आर्मी में। बोला मेहताब अली ज़ख्मी हुए हैं तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करो। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, परेशानी हुई, ज़ाहिर बात है आर्मी की ड्यूटी है। और फिर उन्होंने बात ऐसी कर दी। अब वालदे के लिए तो अगर कोई बच्चा ज़ख्मी होता तब भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 2 घंटे के बाद फिर दोबारा कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, पहले मेरे बॉस को उन्होंने कहा कि भैया उसका बेटा शहीद हो गया, लेकिन उसको फौरी तौर पर नहीं बताना है। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा कि भैया आपका बेटा जो है ना वो शहीद हुआ है, लेकिन आपने जो है ना थोड़ा हिम्मत पकड़नी है। और कोर कमांडर साहब ने मुझे ये रिपोर्ट किया कि मैं आपको मोटिवेट करूं। उस टाइम पे मेरे पर तो जैसे कोई बिजली गिर गई। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बड़ा बेटा था, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, और उसकी अचानक मतलब वो उस तरीके से फिर मुझे उन्होंने आस्ता आस्ता मतलब मोटिवेट किया, समझाया। कोर कमांडर साहब कह रहे थे भाई वो आपके बच्चे की शहादत हो गई है, आपको फ़ख्र होना चाहिए। मैंने कहा सर वो तो सही है, लेकिन एक बाप हाँ बिल्कुल। किस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर इंसानी सकता है, बहुत बड़ी बात इंसानी जज्बा तो अपनी जगह है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात होती है। उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि अपने गांव के एड्रेस मुझे हमें कंप्लीट बताएं, डेट बॉडी जब बाई एयर आएगी उनकी तो इंशाल्लाह फिर हम आपको जो है ना कराची एयरपोर्ट पे हैंड ओवर करेंगे। फौजी एजाज़ के साथ जो है ना वो बेटों की तदफीन होगी। फिर वही हुआ, मतलब जो कुछ होता है उस तरीके से। लेकिन ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा था। बिल्कुल। मैं जब घर आया तो मेरे घर में क़यामत बर्पा हो गई। और मेरे बेटे की डेड बॉडी दूसरे दिन आई 6 सितंबर को, और इत्तेफाक की बात है उसकी तदफीन 6 सितंबर को ही है। तो हम उसकी जो बरसी मनाते हैं वो 6 सितंबर को मनाते हैं। सितंबर पे 5 की तो उसकी हुई थी शहादत, 6 की मैं हमेशा उसकी जो करता हूँ बरसी या कुरान खानी वगैरह, वो 6 को ही करते हैं हम लोग। अच्छा, आपको जब पता चला, कैसे पता चला? इन्होंने आके बताया या कैसे पता चला, और क्या आपने उस वक्त आपका रद्द अमल था? मैं ड्यूटी पे थी, ठट्टे में हेल्थ वर्कर थी। अच्छा। उधर जो हमारा सर था, एक केस में एक औरत मर गई थी, उसके घर फातिहा करने के लिए आ रहे थे, जुंगशाई ठट्टा से आए तो सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे को कुछ बता नहीं रहे हैं। उन लोगों ने बोतल दी, बिस्किट दिए, तो मैं खाऊं तो अंदर नहीं जाए। मैं कहा सर मैंने घर तुम्हारे लिए रोटी तैयार करा दिए, चलो। तो मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला कल नहीं परसों आऊँगा तेरे घर। आज मेरी हैदराबाद में मीटिंग है, उसको पता चल गया था। मैं आई घर की तरफ तो मेरे घर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मेरे को मेहताब की तरफ से ये तवज्जो नहीं थी। मैंने कहा मासूम जो है ना 24 घंटा वो मैंने सोच मात लगाता है, टीवी में लगाता है, तार पकड़ता है। छोटा बेटा जो? हाँ छोटा, पता नहीं उसको क्या हुआ। हाँ। आई अंदर बैठी, इलियास कोई अंदर था। तो जैसे काली रात नहीं आती ऐसी आंखों में आ गई। मैंने कहा इलियास मासूम कहाँ है? बोला मासूम है। मैंने कहा दिखा मेरे को क्या हुआ है, घर में कुछ तो हुआ है, मेरे को बता। इसी में तो
बैठे थे तो खालाजाद भाई आया, गले लगा, बोला दी मेहताब शहीद हो गया। फिर मैंने कुछ नहीं देखा, कौन आया कौन गया। दूसरे दिन बाडी आई मेरे बेटे की, फौजू ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं रोई तो मेरे बेटों के आंखों में आंसू बहे। मैंने कहा मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ, जिंदा है। तो उसने मेरे को, फौजी ने, जिसके ऐसे पैसे नहीं लगे होते जी हैं, जी। उन्होंने मेरे को बोला शहीद अमर है, अम्मा तेरी सारी बातें सुन रहा है, तुम नहीं रो। हाँ नहीं रो। ऐसे करके चला गया। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं हमको बड़ा फख्र है उसकी शहादत पे। जिंदा हुआ इंसान जरूर मरेगा, कोई बीमारी में चला जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई किसी में, मगर माँ बाप जो है ना, ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सही बात। बहुत तकलीफ होती है, बहुत। बड़े दिन छोटे दिन, खाना पका, उठना बैठना, ईद आती है, वो हर चीज में आगे पीछे हम तो बीमार हो गई, शुगर बन गई, मैं तो बीमार हो गई हूँ सोच सोच के, सोच। और सबसे लेकिन अल्लाह इसका आपको, अभी शायद ये बात कहने का भी ना दिल को नहीं लगती है बात। अपनी औलाद चली जाए तो दिल को कोई बात नहीं लगती, किसी की कोई बात से दिल को कोई तसल्ली नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बच्चे के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, हमने उसकी मंगनी की। मंगनी की थी मैंने, उसकी मेहंदी वो लगी। मंगनी के 25 दिन के बाद उसकी शहादत हुई, उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। इसमें अल्लाह ताला ही आप लोगों को सब्र देने वाला है बेशक, और उसके अल्लाह हाथों ताला ही इस दुनिया के बाद जो हमसे, जो क्योंकि कुरान में है, वही सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है, हाँ, और वही सबसे ज्यादा जजा देने वाला है, वही जजा देने वाला है। तो इंशाल्लाह वही सब्र देगा, वही जजा देगा। जी अल्लाह के सारे उसके सारे जी रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आप लोगों को, अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल करे। वो भी बैठा है ऐसे ही बेरोजगार, रोटी नहीं दे रहे, मिल रही है। मेरे शोहर की पेंशन है, उसमें गुजारा करते हैं हम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा हाँ, इंशाल्लाह, जरूर करेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ आसिफ अली झोंकियो शहीद का तस्करा करेंगे। भाई आप, आपसे छोटे भाई थे? अब मुझे 5-6 नंबर पे था, पांचवें सबसे था। छोटे थे। सबसे छोटे थे। तो क्या बचपन की बातें, और कब जब आर्मी में जाने का सोचा, आपसे आके बोला, कोई बातचीत करते थे आपसे, दोस्ती थी या कम नहीं, थी? बिल्कुल वो बात तो हुआ करती थी। इसको तो वैसे ही ये जस्तजू थी, वैसे बगैर ड्यूटी के वो कौम की गांव में किसी न किसी की मदद करता रहता था। कोई ना कोई इनका कोई काम कहता तो उनके साथ चला जाता था। तो ये इसकी जस्तजू पहले हुआ करती थी। तो जब इसकी उम्र हुई तो आर्मी का शौक़ पूरा करने के लिए जानबाज फौज जो होती है वो ज्वाइन कर ली। तकरीबन 1 साल साल तक वहीं रहा था। फिर वहाँ पे एक उसको उस्ताद मिला था जिसका नाम साबर। उससे ये बात कही कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, मुझे शौक़ है। तो उस्ताद साबर ने इसकी हेल्प की, वो उसको भर्ती करवा दिया। उससे बात करके तो आप लोगों को बताया, तो आप लोगों ने क्या कहा, या घर में क्या बात हुई फिर? घर में सबसे पहले आया मेरे पास, मेरे को बताया। वो मेरे को अड्डा ही बोलता था, दादा मैं आर्मी में जा रहा हूँ। बात हो गई, अब अब्बू और अम्मी को आप ज़रा कंट्रोल कर लें। तो अब्बू से मेरी बात हुई, अब्बू ने बोला सही है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप जाओगे तो भागने की फिर बात नहीं करना, जाओगे तो टिक के काम करो। फिर अम्मी को भी समझाया, वजह अम्मी तो पहले नहीं मान रही थी। फिर अब्बू और मैं एक तरफ, उसको हार माननी पड़ी। बोला ठीक है, फिर अल्लाह के हवाले, अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये जो शहादत का वाक़या हुआ, ये किस तरह से हुआ, और आप लोगों को कैसे इत्तला हुई? ये तो हम घर में, वैसे मेरा घर और मेरे वालिद का घर थोड़ा सा फासले पर है। मैं उस दिन ऐसे ही गया हुआ था वालिदा और वालिदा से मिलने के लिए।
तो अब्बू ने मुझे कहा बेटा आज जो ना आप यहीं रुक जाओ, आप घर न जाएं। मैंने बोला अब घर नज़दीक है। बोला नहीं बस आज बैठ जाओ, मेरा दिल कह रहा है। और रात को बैठे हुए थे तो यूनिट से कॉल आई थी कि आसिफ जो है ना शदीद ज़ख्मी हुए, आप उनके हक़ में दुआ करें। तो अब्बू ने मुझे बताया, बोला बेटा वो वहाँ से कॉल आई है कि आसिफ शदीद ज़ख्मी है, वो शायद शहीद हो चुके हैं, ज़रा आप हिम्मत करना, कंट्रोल करना अपने आप पे। ये आपके वालिद ने बोला आपको? जी, अच्छा। वालिद ने यही बात कही थी। फिर दूसरे दिन सुबह कॉल आई थी कि भाई उनकी शहादत हो गई। तो ये वो जंडोला के वज़ीरिस्तान में जंडोला के मकाम पे जो इनकी शहादत हुई, ये चल रहा था ऑपरेशन राय निजात, उसमें 24 अक्टूबर 2009 में। फिर वालदा को जब पता चला और घर में और बहन भाइयों को? बस वो तो होता है, अभी तो लगते जिगर था वालदा का। फिर मिले जुले तासरा थे। एक तो दुख था, गम था कि बच्चा जो है ना वो जिगर का टुकड़ा है, वो तो अलग हो गया। और दूसरी तरफ वो ये खुशी भी थी कि भाई उनको शहादत का मर्तबा मिला है, अल्लाह ने हमारे ही घर को चुना था। बहुत सी यादें और बहुत सी बातें हैं। अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे और जज़ा दे और शहीद की शहादत को कबूल करे, यही हमारी दुआ है। और बाकी तो सब बातें ही हैं। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम इस सेगमेंट को क्लोज़ कर रहे हैं, एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और मेहमानों से मुलाकात करेंगे।